میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوسری جانب محکمہ صحت کی ہٹ دھرمی ننھے بچوں کے لیے خطرہ بن گئی۔ میاں والی شہر کے سینکڑوں نجی اسپتال چائلڈ نرسری سے محروم ہیں۔ ڈی ایچ کو اسپتال کی نرسری میں بچوں کا رش، ایک وارمر پر 2 بچوں کو رکھا جانے لگا۔ ایم ایس ڈی ایچ کیو اسپتال کی محکمہ ہیلتھ کیئر سے سنگین مسئلے کے حل کی اپیل کی گئی ہے۔ ایم ایس ڈی ایچ کیو ڈاکٹر رفیق خان نے بتایا کہ میاں والی کے کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں نرسری نہیں ہے، جبکہ پنجاب ہیلتھ کیئر نے پرائیویٹ زچہ بچہ اسپتالوں میں نرسری کا قیام لازمی قرار دے رکھا ہے۔ ڈی ایچ کیو ہسپتال کی نرسری میں مریض بچوں کا رش رہتا ہے۔ ہمارے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں 2 نرسریز ہیں، ایک سکینہ ہاسپٹل میں ہے اور ایک ڈی ایچ کیو میں ہے، اور یہ ہمیشہ اوور لوڈڈ رہتی ہے کیونکہ یہ ہم نے بنائی تھی اپنے ہاسپٹل کے لیے، لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے ہمیں کہ یہ پورے ڈسٹرکٹ کے بچے جو پرائیویٹ کلینک پہ بھی ڈیلیور ہوتے ہیں وہ بھی لوگ ادھر ریفر کر دیتے ہیں، اور اس وجہ سے ہمارے پاس اسپیس کم ہو جاتا ہے اور اس لیے ہمیں مجبوراً ڈبل لنک کرنی پڑتی ہے۔ ایم ایس ڈی ایچ کیو نے بتایا کہ قانون کے مطابق نرسری وارڈ کے ایک وارمر پر 1 بچہ ہونا چاہیے، مگر ڈی ایچ کیو کی نرسری میں ایک وارمر پر 2 بچوں کو رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ والدین ان پرائیویٹ ہسپتالوں کو رخ نہ کریں جہاں ہیلتھ کے اصولوں پر عمل نہیں کیا جاتا۔ پرائیویٹ کلینک والے جو عام بچے ڈیلیور کرتے ہیں جہاں سیزیرین سیکشن کی سہولت ہے، میری ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ بھی اپنا نرسری کا کوئی بندوبست کریں، کیونکہ ہمارے بچے ہیں آلریڈی ہم اوور لوڈڈ ہیں اور ان بچوں کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ اگر پنجاب ہیلتھ کیئر نے پرائیویٹ ہسپتالوں کو نرسری کے قیام کا پابند نہ بنایا تو ڈی ایچ کیو ہسپتال میں مریض بچوں کو ڈاکٹر بہتر طریقے سے نہیں دیکھ سکیں گے۔ میاں والی کے جتنے بھی زچہ بچہ ہاسپٹل ہیں وہاں پہ نرسری کا قیام نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہاں سے آنے والے بیمار بچے جو ہیں ان کو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کی نرسری میں منتقل کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی اموات بھی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب ہیلتھ کیئر اس حوالے سے کیا اقدامات کرتی ہے۔ اگر اس پر اقدامات نہ کیے گئے تو اسی طرح ڈی ایچ کیو پر برڈن رہے گا اور بچوں کی اموات ہوتی رہے گی۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ بہاولپور میں جدید سہولیات کی جانب ایک اور قدم۔ کمشنر بہاولپور کیپٹن ریٹائرڈ محمد ظفر اقبال کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ صاف پانی کی فراہمی سمیت دیگر منصوبہ جات ترتیب دینے کا فیصلہ۔ نئے منصوبے سے پانی، سیوریج اور دیگر مسائل کا خاتمہ ہوگا۔ ڈویژن کیپٹن ریٹائرڈ محمد ظفر اقبال کی زیر صدارت پنجاب اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بارے جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پنجاب انٹرمیڈیٹ سٹیز انویسٹمنٹ امپروومنٹ پروگرام کے تحت شہری سہولیات کے منصوبہ جات کا جائزہ لیا گیا۔ ویڈیو لنک اجلاس میں پروجیکٹ ڈائریکٹر پی سی آئی پی سکرات امان رانا، سی ای او پروگرام ڈاکٹر جاوید اقبال، ایڈیشنل کمشنر ریونیو مہر خالد احمد نے شرکت کی۔ ڈی جی پی ایچ اے سمیرہ ربانی، ڈی جی بی ڈی اے جام بقا حسین، سی سی او میونسپل کارپوریشن چودھری محمد شفیق، ڈپٹی ڈائریکٹر فائنانس اینڈ پلاننگ وکاس محمدین اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے نمائندے بھی شریک تھے۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ پینے کے صاف پانی کی فراہمی، سیوریج سسٹم اور ڈسپوزل پارک و سبزہ زار، جدید ٹرانسپورٹ سہولیات اور اربن انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے منصوبے ترتیب دیے جائیں گے۔ بہاولپور شہر کی آبادی اور مسائل کے مطابق منصوبہ بندی کی جائے گی۔ اور سلسلہ سہروردیہ کے عظیم روحانی پیشوا حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کے 707ویں سالانہ عرس مبارک کا دوسرا روز ہے۔ کرونا کی وجہ سے عرس کی سہ-روزہ تقریبات منسوخ کر دی گئی۔ سلسلہ سہروردیہ کے عظیم روحانی پیشوا حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کے 707ویں سالانہ عرس مبارک کے دوسرے روز بھی زائرین نے درگاہ پر حاضری دی۔ زائرین نے کرونا SOPs پر بھی مکمل عمل درآمد کیا۔ کرونا کی وجہ سے عرس کی سہ روزہ تقریبات منسوخ اور ملک بھر سے زائرین کے داخلے پر بھی پابندی عائد کی گئی، جس کی وجہ سے عرس روایتی مذہبی انداز میں نہیں منایا جا سکا۔ ان کا روحانی فیض تو ہے نا جی، مجبوری ہے کہ حکومت کی SOPs پر عمل کرتے ہوئے کرونا کی وجہ سے کانفرنس نہ ہو سکی۔ زائرین کا کہنا تھا کہ عرس کی تقریبات ہوں یا نہ ہوں، اولیاء کرام کا فیض اور روحانیت انہیں یہاں کھینچ لاتا ہے۔ سندھ سے بھی چند زائرین دربار پر حاضری دینے کے لیے پہنچے۔ ہم ہر جو ہے نا عرس پہ یہاں پہ آتے ہیں اسپیشل یہاں پہ سلام دینے کے لیے، کیونکہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے برصغیر پاک و ہند میں اسلام پھیلانے کے لیے جو ہے نا کام کرتے رہے ہیں یہ لوگ۔ عقیدت مندوں نے درگاہ پر فاتحہ خوانی کی اور گل پاشی بھی کی۔ یہ ان اولیاء کرام کی تعلیمات کا ہی اثر ہے کہ آج بھی عقیدت مند ان درگاہوں پر روحانیت سے فیضیاب ہونے کے لیے آتے ہیں۔ کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ سلسلہ سہروردیہ کے عظیم روحانی پیشوا حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کا 707واں سالانہ عرس
सूबाई वज़ीर औकाफ सैयद सईदुल हसन शाह ने दरगाह पर हाजिरी दी और फातह खानी भी की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्तान में बड़े सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह का 707वां उर्स जारी है। दूसरे रोज सूबाई वजीर औकाफ सैयद सईदुल हसन शाह ने दरगाह पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की। औलिया किराम की इस हस्ती की जितनी खिदमात हैं हजरत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह की, हजारों साल बाद भी लोग किस मोहब्बत के साथ दीवानावार यहाँ हाजिरी दे रहे हैं। तो आज इत्तेहाद उम्मत के लिए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले से जो इस हस्ती की तालीमात थी, हमें उनको पेश नजर रखना है। सूबाई वजीर औकाफ ने दरबार पर गुलपाशी और चादर पोशी भी की। जोनल एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ राना तारिक अली और देगर मुलाजमीन भी इनके हमरा थे। घरों में ही जिक्र अस्कार किया जाए, नवाफिल पढ़े जाएं और दुआएं की जाएं। तो इसलिए चूंकि जान का जो बचाना है, अल्लाह ताला फरमाते हैं एक जान को बचाना ऐसे है जैसे पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। सूबाई वजीर औकाफ ने कहा कि दरगाह की राहदारी की मरम्मत जल्दी करवा दी जाएगी। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दी जाने वाली मराद 31 दिसंबर को खत्म होने पर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारों ने भी हुकूमत से मराद की मुद्दत बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी है। कहते हैं इतने अरसे में तो 2 मरले का यूनिट भी तैयार नहीं होता। उनका मजीद का कहना था, देखिए जुनेद अनवर की रिपोर्ट में। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दी जाने वाली मराहत 31 दिसंबर को खत्म हो जाएंगी। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी हुकूमत से मराहत की मुद्दत बढ़ाने की दरखास्त कर दी। रहनुमा तहरीके इंसाफ और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर मियां फारूक का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि स्मोक के सीजन में भट्टे बंद हुए तो काम भी रुक गया था। हुकूमत कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दी जाने वाली मराहत की मुद्दत में इजाफा करे। हुकूमत ने जितने अरसे के लिए मराहत दी, इतने अरसे में तो 2 मरला का यूनिट नहीं बनता है। अभी स्मोक के मौसम में ये तमाम इंडस्ट्री जो थी, सीमेंट फैक्ट्री थी, बजरी की फैक्ट्री थी और ईंटों के भट्ठे थे, वो तमाम बंद हो गए। उसी दौरान काम भी बंद हो गए और इतने मुख्तसर अरसे में 1-2 मरले का यूनिट भी तैयार नहीं हो सकता। उसको बनाने के लिए कुछ टाइम लगता है। 31 दिसंबर तक जो है इनकी मियाद बहुत कम है। हम ये मुतालबा करते हैं कि इस मियाद को मजीद बढ़ाया जाए ताकि इस मियाद से बढ़ाने से ये फायदा होगा कि लोग को रोजगार मिलेगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीनियर नायब सदर सैयद इफ्तिखार अली शाह का कहना था कि इतने कम अरसे में माशी बेहतरी नामुमकिन है। 1 साल की कलील मुद्दत में कोई फायदा नहीं हो सका। 5 साल तक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की मराहत में इजाफा किया जाए। इन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से हमारी 100 से ज्यादा इंडस्ट्रियां मुंसलिक हैं। 31 दिसंबर तक गवर्नमेंट ने 1 साल की इसकी मियाद दी थी। ये बहुत ही कम अरसा है और मैं समझता हूँ कंस्ट्रक्शन का बिजनेस ऐसा है जिससे बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ चलती हैं और तकरीबन 100 एंड अबव द 100 इंडस्ट्रियाँ इससे मुंसलिक होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसको एक्सटेंड करना चाहिए। इसे कम से कम 5 साल के लिए होना चाहिए। बिल्डिंग मटेरियल के कारोबार से जुड़े लोगों का कहना था कि इस वक्त डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है। सीमेंट, सरिया और बजरी की कीमतें मुसलसल इजाफा हो रहा है। इनका कहना था कि हुकूमत अगर ये रियायत खत्म करती है तो कंस्ट्रक्शन का काम बहुत मुतासिर होगा, जिसके बायस न सिर्फ कई कारोबार ठप हो जाएंगे बल्कि बेरोजगारी में भी इजाफा होगा। इस टाइम डिमांड तो काफी ज्यादा है सीमेंट, बजरी, रेत की, लेकिन महंगाई की वजह से लोग कंस्ट्रक्शन काफी कम हो गई है। अगर मजीद ये हुकूमत रिलीफ कम खत्म कर देती है, जो रिलीफ दिया हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन का, तो काम जी बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। बिल्डिंग मटेरियल के कारोबार से जुड़े लोगों का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो इंडस्ट्री के लिए रियायती पैकेज को जारी रखे ताकि रोजगार का सिलसिला चलता रहे। साथ ही रिपोर्टर अतर लशारी अमजद मलिक के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। महकमा सेहत की लापरवाही के बायस मुल्तान में मौजूद हेल्थ यूनिट्स पर डॉक्टर्स की गैर हाजिरी की शिकायत बढ़ गईं। डॉक्टर्स के खाली कमरे मरीजों के मुंह चढ़ाने लगे। रिपोर्ट करेंगे बिलाल नियाजी। सीईओ हेल्थ ऑफिस की नाकिस कारकर्दगी के बायस हेल्थ यूनिट्स पर मौजूद अमले ने भी सुस्ती की इंतहा कर दी। मुल्तान में अक्सर हेल्थ यूनिट्स पर तिबी अमला ड्यूटी से ही गायब रहने लगा। इस्लाम नगर में सिटी मेडिकल सेंटर पर ड्यूटी टाइम में डॉक्टर मौजूद नहीं थे। अभी तक डॉक्टर नहीं आया? नहीं आई। तो क्या कहेंगे कि डॉक्टर को टाइम पे आना चाहिए? जी हाँ। तो बच्ची को क्या इशू था? एलर्जी। इस्लाम नगर मेडिकल सेंटर पर सिर्फ डिस्पेंसर और वैक्सीनेटर ड्यूटी पर मौजूद थे। मरीजों का कहना था कि इलाज के लिए आते हैं लेकिन डॉक्टर्स ड्यूटी पर मौजूद नहीं होते। हम अपनी काम छोड़कर यानी इंतजार कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर आएंगे चेकअप कराकर फिर इंशाल्लाह ताला काम पर जाएंगे। हम अब वेट कर रहे हैं डॉक्टर का। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब ड्यूटी पर डॉक्टर्स के न आने की वजह से महकमा सेहत मुल्तान की रैंकिंग भी मुतासिर हुई है। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान।
हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया में सहूलियात का फुकदान, 22 डॉक्टर समेत 12 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की सीटें खाली। शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। मकामी नुमाइंदों और इंतजामिया की अदम दिलचस्पी, शहरी प्राइवेट इलाज कराने पर मजबूर हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। जहानिया के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सहूलियात के फुकदान के बायस इलाज की गर्ज से आने वाले शहरी मायूस लोग जाते हैं या फिर मरीजों को मुल्तान रेफर कर दिया जाता है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में 22 डॉक्टर समेत 12 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की सीटें खाली हैं, जिनमें चाइल्ड स्पेशलिस्ट की 3, जनरल सर्जन की 2, रेडियोलॉजिस्ट की 1, जनरल फिजिशियन की 1, पल्मोनोलॉजिस्ट की 1, कार्डियोलॉजिस्ट की 1, सर्जन की 1, पैथोलॉजिस्ट की 1, ऑर्थोपेडिक सर्जन की 1, नेफ्रोलॉजिस्ट की 1, आई स्पेशलिस्ट की 1 और इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर्स की 3 सीटें खाली हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर उमर गौरी ने कहा कि ओपीडी में माहाना मरीजों की आमद 30,000 के करीब है। डॉक्टर्स की कमी के बायस उन्हें परेशानी का सामना है। हमें 3 अजला लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी ओपीडी भी जो है ना 28 से 30,000 पर मंथ की होती है, और उसकी वजह से यही है कि हमारे पास जितने कंसल्टेंट की सीटें हैं वो अनफॉर्चुनेटली खाली पड़ी हैं, जिसमें पीडियाट्रिशियन है, सर्जन है, आई स्पेशलिस्ट है, स्किन स्पेशलिस्ट है, जनरल पल्मोनोलॉजिस्ट है। ये तमाम सीटें हमारी खाली पड़ी हुई हैं, और जिसकी वजह से हमें भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और हमें पेशेंट भी रेफर करने पड़ते हैं। शहरियों का कहना है कि टीएचक्यू में सहूलियात न होने की वजह से वो प्राइवेट इलाज कराने पर मजबूर हैं। मरीज को इमरजेंसी में हमें टीएचक्यू जहानिया लाना पड़ता है। जब यहाँ लेके आते हैं फौरी तौर पर हमें सहूलियात का फुकदान बताकर हम मिनिस्टर की तरफ रेफर कर देते हैं। अगर यही मामलात रहते हैं इधर, या फिर तो इनको चाहिए कि ये टीएचक्यू जहानिया को बंद कर दें या हमें सहूलियात दें। शहरियों ने हुकूमत से अस्पताल में खाली सीटों पर डॉक्टर्स को तैनात करने का मुतालबा किया है। डेरी खान के बासी बुनियादी सहूलियात से महरूम कबाली इलाका बवाटा में 20 से 23 घंटों की लोड शेडिंग मामूल बन गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। के बासी बुनियादी सहूलियात से महरूम कबायली इलाका बवाटा में 20 से 30 घंटों की लोड शेडिंग मामूल बन गई। कबायली अवाम सरापा एहतजाज, मुजाहिरीन का वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। दुनियापुर का मरकजी कब्रिस्तान तजावुजात माफिया के शिकंजे में, लोगों ने कब्रिस्तान में लकड़ी और सीमेंट के पाइप रख दिए। फातिहा खानी के लिए आने वाले अफराद परेशान। अहले इलाका ने आला हुकाम से कब्रिस्तान से तजावुजात खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कोट मिठन में बल्दिया टाउन कमेटी सफाई अमले का अनोखा कारनामा, शहर भर की गंदगी आबादी में ही गिराने लगे। इलाका मकीन शिकवा कुनाब अहमदपुर शर्किया में सीवरेज निजाम दरहम बरहम, 70% सेवर लाइन तबाह। मकीनों का बल्दिया के खिलाफ एहतजाज। असिस्टेंट कमिश्नर नईम सादिक ने जल्द मसला हल करने की यकीन दहानी करवा दी। बहावल नगर म्यूनिसिपल कमेटी की अदम तवज्जोही के बायस शहर का सीवरेज सिस्टम ठप हो गया। जगह जगह गंदा पानी जमा हो गया। राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा। सादिकाबाद में इंतजामिया की गफलत और लापरवाही, शहर की मेन रोड कचरा कुंडी में तब्दील। शहर भर का कचरा शहर की मसरूफ शाहरा कच्चा शाही रोड पर गिराया जाने लगा। मेलसी तहसील ऑफिस में सफाई की नाकिस सूरत हाल, जगह जगह गंदगी के ढेर। वॉकिंग ट्रैक और दीवार टूट फूट का शिकार। ग्रीन बेल्ट खत, बिल्डिंग के शीशे टूट गए। जलालपुर पीरवाला में लेडीज पार्क जिला इंतजामिया की गफलत की बीम चढ़ गया। खवातीन की सहूलत के लिए बनाया जाने वाला लेडीज पार्क कचरा कुंडी में तब्दील। जगह जगह सीवरेज का पानी जमा, पार्क झील का मंजर पेश करने लगा। और कोट मिठन में पंजाब हुकूमत महकमा टूरिज्म डिपार्टमेंट का अहसन इकदाम। विंग मोड़ से दरबार फरीद की जानिब जाने वाली सिंगल सड़क को डबल करने का काम तेजी से हो रहा है। शहरियों की जानिब से महकमा टूरिज्म का शुक्रिया अदा किया गया। कोट मिठन में तरक्याती मंसूबे शुरू कर दिए गए। पंजाब हुकूमत महकमा टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से शहर फरीद में विंग मोड़ ता दरबार फरीद तक जाने वाली सिंगल सड़क को डबल करने का काम तेजी से जारी है। उधर रहीमिया खान का शेख ज़ैद अस्पताल में कार्डियोलॉजी वार्ड जिलाई सतह पर पहला जदीद तरीन कार्डियोलॉजी वार्ड है। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। 9 साल कबल अपनी मदद आप और अतिया की मदद से शेख ज़ैद अस्पताल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की बुनियाद रखी गई। पंजाब भर में जिला की सतह पर पहला जदीद कार्डियोलॉजी वार्ड बनाया गया। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एंजियोग्राफी, प्लास्ट्री और फिर ओपन हार्ट सर्जरी के केसेस रहीमिया खान में होने लगे। शेख ज़ैद अस्पताल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट ने पंजाब भर के टीचिंग अस्पतालों में पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा 6000 से ज्यादा एंजियोग्राफी की और 1500 से ज्यादा मरीजों के स्टंट डाले। दिल के आर्जा के गरीब मरीजों को घर की दहलीज पर सेहत की सहूलत मिलने लगी। रहीमिया खान हॉस्पिटल का वाहिद हॉस्पिटल है जो सीसीयू, जो कि एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की सहूलत मुहैया कर रहा है। और रहीमिया खान का सीसीयू म्यू हॉस्पिटल के बाद दूसरा बड़ा सीसीयू है। ये 80 बेड पे मुश्तमिल सीसीयू है, जिसमें हम डेली इमरजेंसी लेते हैं,
हमारे पास 15 बेड एमरजेंसी के भी हैं और हम यहाँ डेली एंजियोग्राफी, एकोकार्डियोग्राफी कर रहे हैं और हफ्ते में 2 दिन हम यहाँ पे बाईपास की सहूलत भी है। लास्ट ईयर हमने 3500 से ऊपर केसेस किए हैं एंजियोग्राफीज के और 700 से ऊपर एंजियोप्लास्टिस की हैं। हमारी अवलीन तरजीह होती है कि पेशेंट को तमाम तरह इलाज की सहूलतें फ्री या कम तरीन रेट्स पे दी जाएं। शेख ज़ायद अस्पताल के कार्डियोलॉजी सेंटर 80 बेड और इमरजेंसी के 15 बेड्स पर मुश्तमिल है। दिल के आर्जा की 24 घंटे इमरजेंसी भी मौजूद है। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही देहिंगा। मियांवाली में वेल वुमेन क्लिनिक का तामीराती काम आखिरी मराहिल में पहुंच गया। खवातीन को ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए दूसरे शहर में नहीं जाना पड़ेगा। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। MSDHQ अस्पताल मियांवाली डॉक्टर रफीक खान ने वेल वुमेन क्लिनिक के तामीराती काम का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए वेल वुमेन क्लिनिक का तामीराती काम मुकम्मल हो गया है। मेमोग्राफी के अलावा तमाम तर सहूलियात मुयस्सर होंगी। MS डॉक्टर रफीक खान ने बताया कि पंजाब भर के 3 अजला में क्लिनिक कायम किए जा रहे हैं। अगले चंद रोज तक मियांवाली वेल वुमेन क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। हेल्थ अमला लाहौर से ट्रेनिंग मुकम्मल करके आ चुका है। ये वेल वुमेन क्लिनिक हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ये पंजाब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है जिसमें हमारे ये बिल्डिंग थोड़ी सी तंग थी, इसको हमने दोबारा कुशादा किया है और इसकी सारा जो ज़रूरी लवाजमात हैं वो पूरी कर रहे हैं और एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा और हम वेल वुमेन क्लिनिक अच्छी तरह इस्टेब्लिश कर पाएंगे। MS डॉक्टर रफीक खान ने बताया कि बर वक्त तशखीस से ही ब्रेस्ट कैंसर का इलाज मुमकिन है। इमारत मुकम्मल है, मशीनरी लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मेमोग्राफी कैंसर की तशखीस में अहमियत की हामिल है, जिसके लिए दरख्वास्त दे दी गई है। हमारा जो DHQ हॉस्पिटल मियांवाली का अमला था, जो ज़रूरी अमला था, जो हमने नॉमिनेशन भेजी थी वो सारे हमने लाहौर में भेजे थे और वो सारे ट्रेंड होकर आ गया है। अब वो फुली ट्रेंड है और अपने तौर पर काम कर सकते हैं और इसलिए हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और अगले हफ्ते में इंशाल्लाह इसका बाकायदा पंजाब गवर्नमेंट इसका इफ्तिताह कर लेगी और वेल वुमेन क्लिनिक जहाँ से काम करना शुरू कर देगा। वेल वुमेन क्लिनिक का यूनिट DHQ अस्पताल के सकीना MH में कायम किया गया है। वेल वुमेन क्लिनिक के इजरा से मियांवाली की खवातीन को सेहत के शोबे में कई सहूलियात मुयस्सर होंगी। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। जनूबी पंजाब की अहम शख्सियात की मसरूफियत का अहवाल देखिए इस रिपोर्ट में। भावलपुर का रेवेन्यू अफसरान और फील्ड अमले की फराइश में गफलत पर इजहार नाराजगी। तीनों अजला में डिप्टी कमिश्नर्स को मामले का नोटिस लेने का हुक्म दे दिया। कहते हैं रेवेन्यू अफसरान ना काम पर तवज्जो देते हैं और न ही कोर्ट केसेस निपटाते हैं। फराइश में गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बैनुल मज़ाहिब अमहंगी वक्त की अहम जरूरत है। कमिश्नर सरगोदा डॉक्टर फराह मसूद की जेर सदारत इजलास कहती है जिले इंतजामिया और पुलिस समेत तमाम महकमे क्रिसमस पर अपनी जिम्मेदारी अंजाम देंगे। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नेयर शेख और DPO जुल्फकार अहमद समेत अमन कमेटी मेंबरान की शिरकत। डेरा गाजी खान में RPO फैसल राना का सेंट एंथोनी चर्च का दौरा। चर्च के मुंतजमीन ने RPO का इस्तकबाल किया। RPO फैसल राना ने चर्च में सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया और DG खान उमर सईद मलिक का बंक का दौरा। मुल्तान इंतजामिया ने क्रिसमस के लिए इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी। डिप्टी कमिश्नर और CPO की जेर सदारत इजलास हुआ। मारूफ आलम दीन मोहम्मद हनीफ जलंधरी और मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने कहा कि क्रिसमस मौके पर मिसाली इंतजाम किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फर खान सियाल का दौरा हासिलपुर। DHQ अस्पताल में मर्दाना, जनाना और इमरजेंसी वार्ड का विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर ने शोबा अमराज कल्ब चिल्ड्रन कम्प्लेक्स और ग्रीन बेड का इफ्तिताह कर दिया। AC ऑफिस में नंबर दरान को कार्ड्स का अजरा भी किया। खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शिराजी ने दफ्तर के सब्जाजार में खुली कचहरी लगाई। साइलिन के मसाइल सुने और उनके हल के अहकामात भी दिए। माजूर शख्स को ताइब भी दिए। मियांवाली में DPO मुंतसर फिरोज की जेर सदारत ट्रैफिक के हवाले से मीटिंग हुई। डिप्टी कमिश्नर ने तजावुजात अड्डों को खत्म कराया जाए और तमाम ओवरलोड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जामपुर के मॉडल बाजार में स्टॉलों की तोसी का इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद ने इफ्तिताह किया। 61 नए स्टॉल्स की तोसी के बाद मॉडल बाजार के स्टॉलों की तादाद 196 तक पहुंच गई। AC मलिक फारूक अहमद बोले मॉडल बाजार में फूड स्ट्रीट बाजार भी लगाया जाएगा। जनूबी पंजाब के अवाम को सेक्रेटेरिएट नहीं अलहदा सूबा चाहिए। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदूर साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद ने PDM में फूट की तरदीद कर दी। कहते हैं इस्तीफे पार्टी चेयरमैन को दे दिए हैं, वो वक्त आने पर स्पीकर को जमा करवा देंगे। उनका मजीद क्या कहना था, देखिए अमजद मलिक की रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर और साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद की 2 रोजा दौरे पर मुल्तान आमद। साबिक सूबाई वजीर सैयद नाजिम शाह और पार्टी रहनुमा सैयद हैदर अब्बास गर्देजी की वफात पर उनके अहले खाना से ताज़ियत की।
मुजफ्फरगढ़ में साबिक नायब सदर PLF मलिक सफदर पहोड़ मरहूम DNDA के नायब सदर आशिक खान बलोच की वालदा, PLF के सदर सरदार जफरुल्लाह खान लगारी एडवोकेट के भाई और मुजफ्फरगढ़ के जिला सदर अल्लाह नवाज अलीजई एडवोकेट के बेटे के इंतकाल पर फातिह खानी की। उन्होंने कोट अद्दू में इस्तकबालिया में शिरकत की। मखदूम अहमद महमूद का कहना था कि PDM ने लोगों को उम्मीद दी है, सिंध में जिमनी इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो वक्त आने पर इस्तीफे स्पीकर को जमा कराएंगे। कौन सी सियासी फोर्स मैदान को खाली छोड़ेगी जिमनी इलेक्शन के दौरान, और हम जिमनी इलेक्शन जीत के भी इस्तीफा दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मखदूम अहमद महमूद का मजीद कहना था कि हुकूमत ने 100 दिन में सूबा देने का वादा किया, लेकिन सिर्फ सेक्रेटरीट दे दिया। हमें अलहदा सूबा चाहिए। सेक्रेटेरिएट में एक IG एडिशनल IG इन्होंने दिया है, एक इन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दिया है। मुझे आप बताएं कि हमारा जो इनसे झगड़ा है रोजगार का और वसाइल का, वो कैसे हल होगा। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सीनियर नायब सदर ख्वाजा रिजवान आलम, चीफ कोऑर्डिनेटर जनूबी पंजाब अब्दुल कादिर शाहीन, जनरल सेक्रेटरी राव साजिद, डिविजनल सदर मुल्तान खालिद हनीफ लोधी, डिविजनल सदर मुजफ्फरगढ़ आसिफ दस्ती, ख्वाजा इमरान, चौधरी यासीन, राजिया रफीक, डॉक्टर जावेद सदीकी, रियाज सामटिया और दीगर पार्टी ओहदेदारान भी उनके हमरा थे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। कहते हैं कि नींद सूली पर भी आ जाती है और जब गाड़ी चला रहे हों तो ऊंघ या नींद का गलबा जानलेवा होता है। नेशनल हाईवे पुलिस ने नींद से छुटकारा हासिल करने के लिए एंटी डोजिंग डिवाइस मुतारिफ करा दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। दौरान ड्राइविंग नींद का गलबा आ जाए तो अपनी जान को खतरा होता ही है, मगर दूसरों के लिए भी जानलेवा साबित होता है। बस ड्राइवर्स के साथ सवारियों की सूरत में कीमती जानें जुड़ी होती हैं। बस ड्राइवर की मामूली सी कोताही जानलेवा हादसे का सबब बनती है। नींद और ऊंघ को भगाने के लिए नेशनल हाईवे पुलिस ने एंटी डोजिंग डिवाइस मुतारिफ करा दी। रहीमिया खान सेक्टर में सेक्टर कमांडर अफनान अमीन ने बस ड्राइवर्स को एंटी डोजिंग डिवाइस दी। सेक्टर कमांडर ने एंटी डोजिंग डिवाइस के इस्तेमाल के तरीका के बारे में तरबियत दी। कान के पीछे लगने वाला आला नींद की सूरत में आवाज पैदा करके नींद से बेदार करेगा। अलर्टनेस का लेवल है वो जब नीचे हो और फटीग की वजह से उसका इंसान का सर घूमे तो ये उसकी उस वक्त एक अलार्म के तौर पे, जैसा कि अभी हमने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में भी आपको दिखाया, ये उसको बेदार करने के लिए एक अलार्म बजेगा और अलार्म इतना जरूर होगा कि उस शख्स को और उसके अतराफ में 2-4 लोगों को सुनाई देगा। बस ड्राइवर समेत तमाम ड्राइवर्स एंटी डोजिंग डिवाइस के इस्तेमाल की आदत अपना लें तो छोटा सा आला बड़े हादसे को कंट्रोल करने में मदद दे सकता है। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा में क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब मुनाकिद की गई। मसीही बरादरी के वकला ने कसीर तादाद में शिरकत की और क्रिसमस केक काटा। अहवाल बताएंगे फसीउल्लाह। सरगोदा जिला कचहरी में वाक़िया ओल्ड डिस्ट्रिक्ट बार रूम में क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर सदर बार एसोसिएशन खुर्रम इकबाल बसरा, ताहिर नवीद चौधरी एडवोकेट, अदील इकबाल सुलैरिया, फादर जोसेफ फारूक समेत क्रिश्चियन कम्युनिटी की वकला बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर क्रिसमस की मुनासबत से केक काटा गया। सदर बार खुर्रम इकबाल बसरा और दीगर शुरका का कहना था कि क्रिसमस अमन का पैगाम देता है और बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अकलियतों के तमाम हकूक देने पर जोर दिया। हमारी बार में जो हमारे क्रिश्चियन भाई एडवोकेट हैं उनके लिए हर साल जो 25 दिसंबर है उसके हवाले से इंतज़ाम किया जाता है। ये हमारे भाई हैं, हम इनकी खुशियों में शामिल हैं और इनके दुख में भी शामिल हैं। और मेरा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि जो भी हमारी मिनॉरिटीज़ हैं उनके हकूक़ का बुनियादी राइट्स का ख्याल रखा जाए। हमारी डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा की रवायत रही है कि हम हमेशा जो 25 दिसंबर है, जो जीसस क्राइस्ट प्रिंस ऑफ पीस की यौम वलादत है, उसको सेलिब्रेट करते हैं। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज पूरी दुनिया में जाता है कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोग जो हैं वो कायदे आज़म के विजन के मुताबिक बिला तफरीक रंग, नस्ल और मजहब बराबर के शहरी हैं। मेरी ये दुआ है मुल्क पाकिस्तान के लिए कि ये क्रिसमस जो है पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क पाकिस्तान में अमन, सलामती, सुलह और मोहब्बत का वसीला ठहरे। और ये हम बड़ी खुशी महसूस करते हैं कि पाकिस्तान में बसने वाले जितनी भी मिनॉरिटीज़ हैं वो अपने त्यौहार को बड़ी खुशी के साथ और अमन के साथ सेलिब्रेट करते हैं। इस मौका पर मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी वक्त की अहम ज़रूरत है। इस हवाले से सरगोदा बार एसोसिएशन में क्रिसमस की मुनासबत से केक काटा गया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। कैमरामैन फैजान खान के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा।
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लैया में गर्ल्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में मुख्तलिफ स्कूल्स की तालिबात के दरमियान बैडमिंटन, फुटबॉल समेत दीगर मुकाबले हुए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। तालिबात में खेलों की सरगर्मियों के फरोग के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लैया में गर्ल्स स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया जा रहा है। फेस्टिवल के तहत गवर्नमेंट हाई स्कूल चक 156 और जिम्नेजियम टीमों के दरमियान खेला गया। मुकर्ररा वक्त तक मैच बराबर होने पर हार जीत का फैसला पेनल्टी किक्स पर किया गया। शाबाश 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 ऊपर देखो। पेनाल्टी किक्स पर गवर्नमेंट हाई स्कूल 156 की टीम ने मैच जीत लिया। मैच जीतने पर टीम की खिलाड़ियों ने खूब जश्न मनाया। खिलाड़ियों का कहना था कि तालिबात को ऐसे मौके फराहम करने के लिए मुकाबलों का इनेकाद किया जाना चाहिए। खेले हम आए, हमें इन लोगों ने सपोर्ट किया कि हम 156 से यहाँ लैया में आए खेलने के लिए। हमें बहुत खुशी है कि हम जीत कर जा रहे हैं। स्कूल प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल 156 ने टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए मुस्तकबिल में ऐसी जीत के अज़्म का इजहार किया है। बच्चों ने बहुत मेहनत की है, मेहनत से खेले हैं तो मेहनत का सिला मिला है। ऐसे फेस्टिवल और ऐसे गेम के मौके होने चाहिए। बहुत अच्छा लगा है कि बच्चे मेरे जीत गए हैं। मैच के मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर इम्तियाज भट्टी ने कहा, तालिबात को खेलों की सरगर्मियां फराहम करने के लिए ऐसे मुकाबले जारी रहेंगे। हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और कोरोना के आने के बावजूद भी हमारे जो ग्राउंड्स हैं उनको बंद नहीं होने दिया। इसकी वजह से ये होता है कि इम्यून सिस्टम हमारा बेहतर होता है और हम हेल्दी एक्टिविटी करते हैं तो ग्राउंड को आबाद रखते हैं तो अस्पताल हमारे वीरान होते हैं। गर्ल्स स्पोर्ट्स फेस्टिवल के तहत तालिबात में रस्साकशी, फुटबॉल, बैडमिंटन समेत दीगर खेलों के मुकाबलों का इनेकाद भी जारी है। मुख्तलिफ स्कूल्स के दरमियान जारी खेलों के मुकाबलों से जहां तालिबात के दरमियान मुकाबलों की फजा पैदा होगी, वहीं मुस्तकबिल में उनकी सलाहियतें निखर कर सामने आएंगी। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।